کہ میری سب سے پہلی تقریر ہوئی تھی سونیا باڑے کے اندر مونات بھنجن میں. اس وقت میری عمر تھی صرف 17 سال. اور دوسری تقریر ہوئی تھی میری بامبے میں باندرا میں مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں. اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ. اور اسی وقت میں جذبات کی رو میں بہہ کر بال ٹھاکرے کے بہت خلاف بول دیا تھا اور اسی اسٹیج سے ہم کو پکڑ لیا گیا تھا اور لاک اپ میں رکھا گیا تھا. لیکن 2 مہینے چونکہ میرے کم تھے بالغ ہونے میں اس لیے میں بچ گیا تھا. 18 سال کا نہیں ہوا تھا. آج تقریباً 45 سال میری عمر ہو چکی ہے. اتنے دن کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں. 20 سال کی عمر سے میں یہاں آ رہا ہوں اس علاقے میں. بہار، بنگال، جھارکھنڈ کئی جلسے شیخ رضوان سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں ہوئے ہیں. یہ جانتے ہیں. آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب 18 سال کی عمر سے لے کر آج 45 سال کی عمر کے آپ ہو گئے ہیں، اتنے سالوں میں 27، 28، 25 سال کے عرصے میں ان جلسوں میں آپ کو کتنی کامیابی ملی اور جلسوں کا کتنا اثر ہوا اور کیا ماحول چینج ہوا، آپ 100 میں سے کتنا نمبر دیں گے؟ تو آپ یقین مانیے کہ میں آپ کو 100 میں سے 0 نمبر دوں گا. 28 سال پہلے جہاں آپ کھڑے تھے آج بھی وہی ہیں. 28 سال پہلے جو بے ادبی جلسوں کے اندر ہوتی تھی سننے اور سنانے کے تعلق سے وہ آج بھی ہے. کوئی فرق نہیں پڑا. اور ان جلسوں میں کتنی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا رات بھر ہونے والے جلسوں میں. میں ان گاؤں کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اور بتانا بھی نہیں چاہیے کہ کتنے جلسوں کے اندر کھیتوں میں لڑکے اور لڑکیاں پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لایا گیا ہے، گاؤں میں بٹھایا گیا ہے، پنچایتیں بیٹھی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب یہ کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے ایسے، تو میں کہوں گا کہ مجھے اس کی گنتی نہیں معلوم ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اجلاس ہمارے محفوظ نہ ہوں اور جلسوں کے موقع پر گاؤں میں ہونے والے ان جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں کھیتوں میں پکڑے جائیں تو پھر ہمارے جلسے کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے دینی پروگرام کس طرف جا رہے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کتنے بھی نقصانات آپ گنائیے، جب تک ایک متحرک اور فعال تحریک نہیں چلے گی اور باقاعدہ اس پر میٹنگیں نہیں ہوں گی اور اس پر غور و فکر نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر لکھ دینے سے اور فیس بک پر لکھ دینے سے آپ سوچیں کہ ساری خرافاتیں رک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے واہواہی تو مل جائے گی، لیکن آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے ہیں. روکنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. اگر کسی برائی کو تم اپنی آنکھ سے دیکھو تو پہلے کوشش کرو کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر سکو، اور ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر طاقت نہ ہو، اگر تمہیں اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی تو اپنی زبان سے روکو، اور وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اور زبان سے بھی دور کرنے میں فتنہ اور فساد کا ڈر ہو تو فَبِقَلْبِهِ اپنے دل سے برا جانو. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلسے تو ہوں لیکن جس مقصد کے تحت جلسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان جلسوں کا مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جلسوں کے مقاصد بھی ہمیں جو ہے جیسے دینی ماحول، جلسے سدھارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، جلسے صرف آپ کے اندر ایک روح پھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، جلسے آپ کو نمازی بنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے میں نمازیوں میں جو سستی آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، برائیوں میں جو اضافہ
इजाफा हुआ है उसको दूर करने के लिए होते हैं। जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि अब कल से कोई आदमी शराब ही नहीं पिएगा, कल से कोई आदमी अब बेनमाजी नहीं रहेगा, बल्कि समाज में और मुआशरे में और सोसाइटी में जो कमियां और सुस्ती आई है उसको दूर किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलसों के इन मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। बहुत बड़ी नियामत हमें और आपको मिली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, गौर कीजिए, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो दीन उसका कबूल नहीं होगा। आखिर इस्लाम को अल्लाह ने क्यों ये कहा है कि यही दीन मुझे पसंद है, यही धर्म मुझे पसंद है? उसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन यही इस्लाम है। उसकी शक्लें नाम हो सकता है बदल दिए जाएं जबान के एतबार से और भाषा के एतबार से। जैसे हम वेदों के आधार पर कह सकते हैं कि सनातन धर्म, जिसका माना होता है सत्य की तरफ बुलाने वाला, और सनातन का माना होता है शांति की तरफ दावत देने वाला धर्म। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का माना भी होता है सलामती, जिसके अंदर हो शांति का उपदेश और पैगाम हो। तो जबान बदली जा सकती है लेकिन माना एक ही है। इस धर्म को शाश्वत धर्म भी कहा जा सकता है। शाश्वत धर्म का मतलब होता है आसमान से जमीन पर, आकाश से धरती पर आने वाला सुरक्षित दीन, जो आसमान से जिस कंडीशन में उतारा गया हो और धरती पर जमीन पर उसी कंडीशन में मौजूद हो। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि आसमान से जिस कंडीशन में उतारी गई है, जिस कंडीशन में नाजिल की गई है, वो कुरान अपनी असली शक्ल में जिस कंडीशन में आसमान से नाजिल हुई उसी कंडीशन में मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। तो सनातन कह लो, शाश्वत कह लो, सलामती वाला कह लो, या आसमान से जमीन पर आने वाला सुरक्षित और महफूज मजहब कह लो, वो इस्लाम है। अल्लाह की तरफ से आया हुआ दीन सिर्फ एक ही है। अरे जब अल्लाह ने और चीजें पैदा की है वो जब किसी और के लिए अलग नहीं हो सकती हैं, तो इस्लाम हमारा, मुसलमानों का और दूसरों के लिए दूसरा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने हवा चलाई, जो हवा हमें और आपको मिलती है, कोई कह सकता है कि हवा सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जितनी हवा पर हमारा और आपका हक है, हिंदू भाइयों का भी हक है, यहूदियों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, बुद्धिस्टों का भी हक है, सिखों का भी हक है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उतारी हुई कोई चीज, नाजिल की हुई किसी चीज पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अल्लाह ने हवा चलाई, वो सबके लिए है। अल्लाह ने जो सूरज की रोशनी दी है हमें और आपको, मौजूदा जमीन से ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है और 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो इस सूरज की हमें और आपको मिलती है और हमारे खेतों और अनाजों को पकाती है और तैयार करती है, इस सूरज की शुआ और गर्मियों पर मेरे भाइयों सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूरज मुसलमानों का है और कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि सूरज सिर्फ हमारा है। चांद पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारा पावर है और हमारी अथॉरिटी और ताकत है। इसी तरीके से आसमान पर और जमीन पर कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ हमारा अधिकार है। तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों को पैदा किया वो सबके लिए, उसी तरीके से अल्लाह का उतारा हुआ दीन और धर्म और मजहब भी सबके लिए। वो हिंदू भाइयों का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, सिखों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, बुद्धिस्टों का अलग हो, जैनियों का अलग हो, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ वो दीन भी सबके लिए है। और आप ताज्जुब करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने तुम्हें जो दीन दिया है, जो धर्म दिया है, जो मजहब देकर भेजा है, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये कोई नया दीन लेकर तुम इस दुनिया में नहीं आए हो,
तुमसे पहले भी जितने पैगंबर इस दुनिया में आए हमने उनको वही चीज देकर भेजा था जो चीज तुम्हें देकर भेजा है। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को स्थापित किया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था और जिसकी वसीयत हमने आपको कर दी, जिसका की वही हमने आपको कर दी। और नूह के बाद ये दीन हमने जिनको देकर भेजा वो नाम है वल्लज़ी औहैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहिम, मूसा और ईसा उसी दीन को लेकर आए। मेरे भाइयों गौर करो, जो नूह लेकर आए थे वही मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, जो मजहब इब्राहिम लेकर आए थे वही मजहब नबी अकरम लेकर आए, जो मजहब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें वही दीन दिया। दीन नया नहीं है, दीन नया नहीं है, दीन वही है जो मूसा और ईसा का है। बस ये अलग बात है कि अल्लाह ने जिस नबी को दीन देकर भेजा ये नहीं फरमाया कि हम इस दीन की हिफाजत करेंगे, बल्कि ये भी कह दिया कजरुओं ने कजरवी मिला दी। उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस नबी के गुजर जाने के बाद शिर्क की आमेजिश कर दी, तौहीद के साथ खिलवाड़ किया, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत और बहु ईश पूजा को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बहुत से खुदाओं की और बहुत से माबूदाने बातिला की पूजा होने लगी। और जब जब ये बिगाड़ पैदा हुआ तब तब इस धर्म को की हिफाजत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा और नबियों को भेजा और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वरना हर कौम के अंदर और हर उम्मत के अंदर अल्लाह ने एक नबी को भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हमने एक रसूल भेजा है, उस रसूल की दावत, उस मैसेंजर की दावत, उस प्रॉफिट की दावत, उस पैगंबर की दावत ये थी अनअबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो। हर कौम में एक नबी आया, हर बिरादरी में एक नबी आया और उस नबी की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो।